Hello Ranveer, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? Fine. Yeah. Ranveer, tell me your experience of previous year. How you improve yourself in the board exam? Yeah, ma'am. I improved a lot, ma'am. I was in earlier when I was in ninth, ma'am. I was not enough confident. I was a very lazy kind of person, ma'am. But when I realized that I have to improve myself for the board examinations, ma'am, because this board examination is dependent on my whole life. So I have decided that I need to improve. So I consult many people to for improving my own personal life, and it also helped me a lot in my personal in my co-curricular activities. Also, I am in sports also, so it also improved me to get more disciplined in that way too. Is counseling is helpful for you to improve? Yeah, yes, ma'am. It play a vital role in improving my board examinations, giving papers, and my personal life too. Ma'am, the teachers, ma'am, it is the main role of a counselor is the teachers, how they handle a child in a way they understand the children, uh, how they help and understand them in a better way. Ma'am, this help them to improve their lives too. You got good marks in your board. What is the role of your parents in your journey of the board? Yes, ma'am. My parents played a very important role. Ma'am, they paid my tuition fees. Ma'am, they paid my school and transport fees, which motivated me for studying in a good way. And they also encouraged me that marks, that how much you will score, it doesn't matter. The knowledge you will get, that is more important for you. And yes, my parents are also well educated, which also helped me to get more motivated that my parents are also educated, so I need to get more and better education as compared to them. Every parents cannot give the facilities. What you say? Ma'am, yes. What is the role of the parents then? If Uh, they cannot afford the facilities for a student, Ma'am, what can they do? So, ma'am, yes, it is also my parents are well earning parents, so I can get every facilities, but most of them do not have that much of facilities that I am getting from my parents. So, ma'am, in that case, ma'am, the children should be enough motivated by their own selves. If they are not having any tuitions or that, they can have the internet in nowadays and YouTube, ma'am, which They try to give them. improve. Yes, ma'am. Ma'am, in that many channels are there, ma'am, which help them to improve and to learn in a free way. Ma'am, instead they can learn from them, and if they don't have that internet purposes and anything else, ma'am, the most important in NCRT's book, ma'am, any sort of get extracurricular books, ma'am, which help them to learn in a more effective way. If they have no other options, they can have the last option is they can have any sort of books that is NCRT. What is the role of one-to-one mentoring in your previous result that you improved in your board exam? Ma'am, yes, the earlier I said I was not enough motivated in my previous class, that in ninth. I was a very lazy kind of person. But ma'am, the right teachers that I've got, the right educated parent teacher, ma'am, which helped me a lot. Ma'am, they motivated me at the last point of time. Ma'am, they were for me at the last every minute. Ma'am, whenever I have a doubt, I got a right teacher which helped me. Mentorship is important. Yes, ma'am. Very, very important. Ma'am, in like in pre-boards, I didn't scored a good well marks, but my teacher, my mentor and a teacher do not made me demotivated.
they motivated me more and more, which helped me in my board exams, and I scored very good marks as compared to pre-boards and other annual exams. टाइम मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स और कोकुलर एक्टिविटीज को बोर्ड एग्जाम के दौरान या कोई भी क्लास स्कूल लेवल पे जो क्लास है उसमें कैसे मेंटेनेंस आपको करनी चाहिए, उनको बोर्ड के दौरान कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, कैसे आपने उसको मेंटेन किया, आप बताइए। यस मैम लाइक मैम जब बोर्ड एग्जाम्स लाइक थोड़े पास आए तो मैम उस टाइम पर लाइक एवरीवन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो आपने बंद कर दिया वो सब मैम गेम या पॉपुलर एक्टिविटीज या क्लोज किया, सिर्फ पढ़ाई की? मैम लाइक मैंने पूरा क्लोज नहीं करा, क्योंकि एक अपना भी माइंडसेट होता है जो कि थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हर चीज़ होती है। मैम पूरा क्लोज करने से अच्छा मैंने लिमिट में करा, लाइक 1 आवर 2 आवर, लाइक इफ आई स्टडी फॉर 6 आवर आई प्ले, लाइक बाहर मैं जाता हूँ आउटसाइड थोड़ा खेलने, तो मैं वो 1 आवर के लिए जाता था। तो और स्टूडेंट्स को भी आपको ऐसे ही करना चाहिए या उनको बंद कर देना चाहिए? मैम बंद किस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए? तो मैम बंद नहीं करना चाहिए, एक लिमिट बना लेनी चाहिए। लाइक अगर पहले कोई इंसान लाइक 3 घंटा पढ़ता और 3 घंटा ही खेलता, तो उससे अच्छा आप 4 घंटे पढ़ के उस जो आप बाहर जाते हो उसको आप 2 घंटा या 1.5 घंटा आप कर सकते हो। लाइक थोड़ा कम कर दो और पर जो अभी इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा टाइम देकर, और जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा टाइम देकर, ताकि जो अभी इम्पोर्टेंट है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा बना रहे और हमारा माइंड भी है वो भी फ्रेश रहे, ताकि हम आगे भी और पढ़ सकें। तो कोचिंग, ट्यूशंस और जो ये एक्स्ट्रा हेल्प की जो कॉन्सेप्ट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहना चाहिए या बोर्ड और स्कूल एग्जाम में जिस बच्चे को नीड है वो पूरा साल रहना चाहिए? मैम ये एक हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा मैम, जिसको लाइक पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू नीड। यस मैम, कि जिस स्टूडेंट को लाइक थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता है, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो मैम वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देता है और वो पढ़ना चाहता है। बट मोस्ट ऑफली कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई मैम अलग अपना कोई बिजनेस चलाना चाहता है, वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और उसको उसके पेरेंट्स भी सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ पास के लिए एंड या थोड़े अच्छे नंबर, एक सेटिस्फाई नंबर लाने के लिए। तो हर स्टूडेंट मैम अलग अपने फील्ड में होता है, जिसको मैम कोई बड़ा पोस्ट पे लाइक कोई डॉक्टर, इंजीनियर, उसको मैम वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देता है। तो मैम ऐसा कोई डिपेंड नहीं हम कह सकते कि सबको इकट्ठे पहले दिन से ही सेशन के स्टार्ट कर देना है पढ़ना, सबका अपना अपना होता है, तो सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। स्कूल इज द फंडामेंटल बेस ऑफ मार्क्स इनफ, और हैव यू एनी अदर एक्टिविटीज इन द ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड्स? Yes, कि क्या मायने रखता है और चीजें भी, या फाउंडेशन में सिर्फ नंबर गेम है कि आप नंबर लेके आओ वही स्कूलिंग है, या स्कूलिंग क्या है तुम्हारे हिसाब से? मैम एकेडमिक के साथ क्या होना चाहिए? तो मैम स्कूलिंग एक हिसाब से आप कह सकते हो कि हाँ, नंबर सिस्टम भी हम कह सकते हैं कि नंबर, बट हाँ स्कूलिंग में हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, लाइक हम नए लोगों से मिलते हैं, तो मैम और हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है, हमारा किसी के साथ उठना बैठना जो होता है, कोई नए स्टूडेंट आते हैं उनसे हम नई नेचर्स हम देखते हैं, नेचर एक्सप्लोर करते हैं, टीचर से हम बात करते हैं एंड बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, तो उससे हम एक हमारा जो माइंडसेट होता है हम मेच्योर भी उससे एक होते हैं, और हमें एक्सप्लोरेशन जो होता है वही हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आगे बेटरमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी हम सिर्फ 10th या कोई +1 कोई किसी में है तो इतना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट जितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें एक माइंडसेट जो है वो हेल्प करता है आगे डेवलपिंग के लिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर हम कोई जॉब देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट चाहिए होगा, तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा और इसी क्लासेस से हमारा डेवलप होना शुरू होता है। इन शॉर्ट तुम कहना चाहते हो कि एकेडमिकली तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है ही, इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आपको काउंसलिंग की हेल्प मिलके आपका वो जो डेफिशिएंसी है वो ग्रूम हो जाती है, आपका रूटीन ग्रूम हो जाता है, कुल मिला के आपकी पर्सनैलिटी में जो चीजें और भी जरूरी है वो भी धीरे धीरे फाउंडेशन में स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। ठीक है रणवीर, धन्यवाद तुम्हारे जो एक्सपीरियंस वो शेयर करने के लिए। उम्मीद है आने वाले टाइम में जो बच्चे पढ़ेंगे वो आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।